Today in this session I am going to discuss about three address code for control statement. Three address code for control statement. In control statement we will discuss about the statement like if then else, then while statement, do while statement, for statement and switch and case statement. So the basic things are, you can say that the main advantage of all these statements is that all statements are implemented through if then else, whether it is while, whether it is do, whether do while it is for or switch case. So all are implemented through if then else. So if we know the concept of generating three address code or intermediate code using if then else, so we can easily generate three address code for all other statement. So now uh, I am going to discuss how the statement of if then else is generated. So there are three things. In if then else, if the condition is true then it is execute the statement. If the condition is false then it may execute the statement. But if condition is not true, so and the statement else statement is not given, it will move to the next statement. Okay, so there are three things we have to care about that. If the condition is given, first thing, if the condition is false, what is the else statement, and if else statement is executed then it will move to the next statement. So let's take an example. If a greater than b and the statement it execute p is equal to q plus r. Okay, so what will be the three address statement? So it is just like the control previous session, what we have discussed the expression. So it is numbered like 0 1 2 3 and generate the three address code. So in zero statement, if a greater than b, go to. So we have to know here that in control statement uh, the uh, when the condition is met out, it will jump to the another statement. Okay, so we will use for jumping go to. So if a greater than b, go to, I don't know where it will move, so we will left blank here in which statement. If the condition is false, as here uh, only one part is given. If a greater than b, then the statement will be executed. Else part is not given. It means that if the condition is false, it will move to the next statement. So we will write here go to. Okay, now if the condition is true, it will move to second statement and it will execute the statement p plus q plus r. Third is will be p is equal to t1, and after executing this statement it will move to the next statement. So it will write here go to the next. So if the condition is true, it will jump to the second statement, it will execute and move to the next statement. So it will be sequentially generated. One thing remembered here, that the after condition the next statement will be its false statement. तो इसका मतलब क्या है कि if a greater than b is here written here, so इसका जो next होता है वो इसका false होता है. ठीक, तो here condition is false and no statement is given, so it will be written, it will move to the next statement or it will move to the out to the प्रोग्राम. ये प्रोग्राम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा. एक एग्जांपल और लेते हैं. if a greater than b, p is equal to q plus r, else x is equal to y plus z. तो इसमें दोनों चीज़ें हैं. एक कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा,
अगर क्या है, इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसका कैसे बनेगा, 0 नंबर पे क्या जाएगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी गो टू, इसका एल्स पार्ट क्या है हमारा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो इसका मतलब t1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, सेकेंड x इज इक्वल टू t1, ये एग्जीक्यूट होगा। अब देखो क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो जाएगा, इट विल मूव टू द थर्ड स्टेटमेंट, और ये क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, 4 क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू t2, और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, तो ये क्या हो जाएगा प्रोग्राम से। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है, यहाँ पे x इज इक्वल टू t1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नोट कर लेना, ये हो जाएगा गो टू नेक्स्ट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा। तो अब देखो क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, इसका मतलब गो टू नेक्स्ट हो जाएगा। अब देखो क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये गो टू, ये 3 हो जाएगा, और ये 4, ये 5, तो ये क्या हो जाएगा, गो टू 4 कर देता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स इज इक्वल टू t2, ठीक है, और 6 नंबर पे गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे गो टू 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से, या गो टू नेक्स्ट लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, गो टू 6 लिख सकते हो, ठीक। तो आप इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, इसका देखो कैसे बनेगा, इफ़ ये 0 नंबर पे क्या हो जाएगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी गो टू, पहला क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, सेकेंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ठीक। इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो ये गो टू हो जाएगा, छोड़ देते हैं, अभी नहीं मालूम कौन सा स्टेटमेंट पे पहुंचेगा, लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो t1 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एंड x इज इक्वल टू t1। इसके बाद क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, इसका मतलब गो टू नेक्स्ट कर देते हैं, गो टू छोड़ देते हैं, गो टू कर देते हैं। 4th नंबर पे क्या हो जाएगा, गो टू 4, ये क्या हो जाएगा हमारा, t2 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू t2, और 6 क्या हो जाएगा, गो टू नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, गो टू 3, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ का बना सकते हैं, ठीक। अब आते हैं कि अगर हमारे क्या है कि कई सारे कंडीशन गिवन हैं, ठीक, तो जैसे एक ले लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास क्या है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी, ठीक, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, मतलब क्या है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, तभी क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में कैसे होगा, 0 नंबर पे क्या आ जाएगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी गो टू, मतलब अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे, अगर ये फॉल्स है तब भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये, ठीक, कि ये ट्रू तो नहीं है, इफ़ सी ग्रेटर देन डी गो टू। अब अगर ये ट्रू है तो हम स्टेटमेंट में पहुंचेंगे, अगर ये फॉल्स है तब भी ये चेक करेंगे क्योंकि ये और स्टेटमेंट है, तो अगर ये भी ट्रू है तो वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो प्रोग्राम के, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तब ये प्रोग्राम के बाहर जाएगा, इसका मतलब गो टू छोड़ देंगे हम, ठीक। अब थर्ड पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो टू 3, ये भी क्या हो जाएगा, गो टू 3, और ये क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, 4th क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू t1, और 5th क्या हो जाएगा, गो टू नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गो टू 5 कर देंगे, ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से और स्टेटमेंट अगर क्या है, इफ़ में अगर दो कंडीशन दी हैं, दोनों में से कोई एक करना है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक। अब यहीं पे आ जाते हैं कि अगर एंड होता, ठीक है, अगर एंड होता तब कैसे करते, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, ठीक। अगर हमें ये स्टेटमेंट इसका 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई भी एक फॉल्स है तो प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे,
पहला इफ़ चेक करेंगे, इफ़ ग्रेटर देन बी है गो टू, अभी हमें नहीं मालूम, अभी हम छोड़ देते हैं। देन अगर ये फॉल्स है तो प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, छोड़ देते हैं। अगर क्या है ये ट्रू है तो हम चेक करेंगे ये वाला कंडीशन, तो इसका मतलब इट विल वी रिटर्न गो टू टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल चेक द कंडीशन, इफ़ सी ग्रेटर देन डी देन गो टू। अगर क्या है इफ़ इट इज़ ट्रू तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये भी फॉल्स है तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोग्राम पे चला जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा गो टू। ठीक, और फोर्थ पे आते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, T1 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। फिफ्थ क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू T1, और 6 हो जाएगा हमारा गो टू नेक्स्ट। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम चेक करेंगे कि ये वाला ट्रू है कि नहीं, ये चेक किया, अगर दोनों ट्रू है तो ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट चौथा एग्जीक्यूट, पहला अगर ये ट्रू है तो हम ये स्टेटमेंट चेक करेंगे, ये भी ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये फॉल्स है तो प्रोग्राम के बाहर, ये फॉल्स है तो प्रोग्राम के बाहर, इस तरह से। ठीक, तो अगर क्या है एंड है तो इस तरह से हम लोग 3 एड्रेस कोड जनरेट करेंगे। तो बस सिंपल सब है कि बस हमें देखना है कि हमारा जंप कहाँ पे कराना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है कि कोई भी 3 एड्रेस कोड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है। तो हमने आपको बता दिया कि अगर एक सिंपल स्टेटमेंट है तो इस तरह से क्या कहते हैं, अगर हमारे पास क्या है जो क्या कहते हैं एल्स भी दिया है तो कैसे करेंगे। ठीक, और अगर क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं अगर एल्स और वो सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि 2 कंडीशन दी हैं तो कैसे होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं अगर 2 कंडीशन दी हैं तो क्या कहते हैं हमारा क्या होगा, हम दोनों कंडीशन के लिए देखेंगे, तो ये देखेंगे कि और है या एंड है। ठीक, अगर और है तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा और वो चेक कर लिया जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब देखो कैसे, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग कि वाइल का कैसे बनाते हैं। ठीक, हमारा क्या है वाइल है और डू वाइल है। तो वाइल के लिए भी क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इफ़ देन एल्स से ही इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अब क्या है कि वाइल में क्या होगा कि हमारा क्या है ये लूप है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा क्या है वाइल ए ग्रेटर देन बी है, हमने एक एग्जांपल ले लिया, वाइल ए ग्रेटर देन बी हमारा स्टेटमेंट है P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। ठीक, तो अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर ये A ग्रेटर देन B है तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा ये इट विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, बट द थिंग इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड इफ, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इफ से ही इंप्लीमेंट करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, लेकिन क्या करेंगे एक हम लोग गो टू लगा देंगे कंडीशन पे, तो जिससे क्या होगा लूप चलता रहेगा। तो देख लो कैसे बनेगा इसका, 0 नंबर पे क्या हो जाएगा, इफ ए ग्रेटर देन बी गो टू। अब क्या होगा, अगर ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। ठीक, अब आ जाओ सेकेंड, अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और ये क्या आ जाएगा P1 इज इक्वल टू T1। अब देखो क्या है कि अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये क्या करेगा, इट विल अगेन चेक द कंडीशन, क्योंकि ये क्या है वाइल है तो ये लूप बनाना है हमें, तो हमें क्या करेंगे गो टू 0 कर देंगे इसको, यहाँ पे हमने गो टू 2 कर दिया। ठीक, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन अगेन वी विल चेक द कंडीशन, तो हम क्या करेंगे 0 पे पहुंच गए, अब कंडीशन चेक होगा, अगर ये ट्रू है ठीक तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं तो फॉल्स है तो प्रोग्राम के बाहर, तो हम यहाँ पे गो टू नेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा गो टू 5। ठीक, तो इफ द कंडीशन इज ट्रू हमारा क्या है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या है, अगर वाइल स्टेट पहले ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम यानी कि नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम चला जाएगा। ठीक, इसी में एक इस तरह से हम लिख लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं वाइल नहीं, इस तरह से है i इज इक्वल टू 0 और हमारा है वाइल
आई लेस देन 20। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि इसके लिए कैसे करेंगे, और हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। तो अब देखो क्या है, पहले तो हम इनिशलाइज करेंगे i को, ठीक है, t1 इज इक्वल टू 0 लेके करेंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इनिशलाइज कर दिया t1, ठीक। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, i इज इक्वल टू हमारा 0 है, ठीक है, और t1 इज इक्वल टू आई कर सकते हैं, ठीक, या t1 इज इक्वल टू आई लेके ही चलें, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 है, t1 इज इक्वल टू आई, ठीक, इस तरह से कर लें। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम चेक करेंगे कंडीशन कि t1 क्या है, ठीक है, t1 हमारा क्या है, 0 है इस समय, ठीक, क्लियर है। तो अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ t1 क्या है, लेस देन 20 है कि नहीं, अगर है, ठीक, तब तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। तो अगर, लेकिन अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो टू 4, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, t1 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्या हो जाएगा हमारा, p इज इक्वल टू t1, सिक्स, अब ध्यान देना हमारा क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू t1 प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे t1 क्या था, हमने i इज इक्वल टू 0 किया था, ठीक, t1 इज इक्वल टू आई कर दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू, t की वैल्यू, t1 की वैल्यू 0 थी, अब हमने एक इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगेन क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, यानी कि गो टू ये चला जाएगा किस पे, 2 पे, ठीक, और ये क्या हो गया, गो टू नेक्स्ट, तो ये गो टू यहाँ एक हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वाइल में अगर क्या है इस तरह कंडीशन दी है तो हम इस तरह से करेंगे, अदरवाइज अगर हमारा क्या है i लेस देन 20 है तो i की वैल्यू इनिशलाइज करेंगे। एक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट लिखेंगे जो वैल्यू को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो इनिशियली 0 है, एक वैल्यू बढ़ी, फिर हम लोग चेक किए t लेस देन 20 है, और ये लूप क्या होगा, चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, अनटिल अनलेस द वैल्यू ऑफ t इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, जैसे 20 के बाहर होगा वैसे ही क्या होगा, प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग वाइल का बना सकते हैं। इसी में हम लोग आते हैं डू वाइल का कैसे बनाएंगे। डू वाइल में क्या है, सिंपल वाइल और डू वाइल में डिफरेंस यही है कि डू में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कंडीशन चेक करते हैं। तो डू वाइल में ये है कि पहले हम लोग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, देन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यही कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, डू p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, और हमारा क्या है, वाइल a ग्रेटर देन a लेस देन b है, ठीक। तो अब देखो इसका कैसे बनेगा, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू t1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, ठीक, क्लियर है। इफ कंडीशन इज ओके, इफ a ग्रेटर देन a लेस देन b, गो टू, ठीक है। हाँ, एक चीज़ छूट गया यहाँ पे हो जाएगा, क्या कहते हैं, सेकंड नंबर पे गो टू नेक्स्ट, या रहने देते हैं, यहाँ पे ना लिखें, सीधे कर देते हैं। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन हमने चेक कराया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो टू 0, और अगर क्या है कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, गो टू नेक्स्ट, ठीक। तो सिंपल है, वाइल और डू वाइल में सिंपल डिफरेंस क्या है, स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट हुआ, हमने कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन अभी भी a ग्रेटर देन b है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही कंडीशन a और b का फॉल्स होगा ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम के
बाहर चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डू वाइल का बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि वाइल ए लेस देन बी, ठीक है, और हमारा स्टेटमेंट है इफ़ ए सी ग्रेटर देन डी पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, ठीक है। और एल्स में हमने अगेन क्या कर दिया, एल्स में हमने कर दिया इसके एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, मिक्स होगा। जैसे वो इफ़ के साथ वाइल दे दिया, इफ़ के साथ वाइल के साथ इफ़ दे दिया, ठीक। जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे क्या हो सकता है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अब स्टेटमेंट में हमने लिख दिया वाइल क्या है कि आई लेस देन 20 पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, और इस तरह से हमने दे दिया। तो इसमें देखो क्या है, पहले क्या लिखेंगे, इसका कंडीशन, तो अब इसके स्टेटमेंट में जहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वहाँ पे ये लिख देंगे। तो इस तरह से मिक्सअप करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ दे देन एल्स वाइल और डू वाइल का कैसे 3 एड्रेस कोड जनरेट करेंगे। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग फॉर का बताएंगे, मैं बताऊंगा, और स्विच का बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि कई सारे एग्जांपल्स बुक में दिए होंगे, ठीक है, या मैं गूगल क्लासरूम में क्या कहते हैं एक प्रॉब्लम सेट पूरा डाल दूंगा, जो आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इफ़ देन एल्स। और रिमेंबर, इसमें से क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आता ही आता है, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे या एक क्वेश्चन बड़ा, जिसमें क्या है सारी चीज़ें होंगी। वाइल के अंदर इफ़ भी होगा, इफ़ के अंदर फॉर भी होगा, ठीक है, या स्विच भी होगा। तो इस तरह से बहुत सारे मिक्स करके आते हैं, तो वो सिंपल होते हैं। सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू इफ़ देन एल्स। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है, ओके।